students of class 7, today we will read the poem The Naming of Cats. That is page number 39. And the difficult words are Admetus and Electra and Demeter. The Greek mythological character. These are the characters from their storybooks. Cherish, to hold the dear, to treat with affection, प्यार से बुलाना जिसको कहते हैं contemplation, thoughtfully observation और study जो depth में study की जाती है. Dignified, worthy of respect. Affable, capable of being expressed in words जो अल्फाज में बयान हो सके. Funny, affable, दैट इज़ सेल्फ मेड वर्ड जो खुद से क्रिएट किया जाता है एवरी डे, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है. एवरी डे डेम्स, दैट इज़ द ऑर्डनरी वुमेन, इट इज़ कॉल्ड फॉर द वुमेन. एंड affable, incapable of being expressed. And inscrutable, difficult to understand, made as a hater, crazy. And peculiar, that is odd. Perpendicular, बिल्कुल सीधा जिसको कहते हैं, being a right angles to the horizontal. Plato, the name of philosopher. Profound, deep, beyond what is obvious, बहुत गहरी सोच में होना. Quorum, that is a group. And rap is from rapture, deeply absorbed. Okay, students, this poem has been written by the writer T.S. Eliot. And T.S. Eliot is a very famous writer, and he was a playwright, he was a critic, and he was very famous for the topic he has written about the history. And he was very famous in writings, and he has written the many poems about the pets. So, as you know, the pets are very common in American and European culture. They keep the pets at home and they are a part of their life. And T.S. Eliot has written the Old Possum's Book of Practical Cats, and that was very famous. And he has written the many topics on this book about the cats. So the whole poem is about the naming of cats, when they keep the cats at home, how they define their names, and that is a difficult task. The naming of cats is a difficult matter. It isn't just one of your holiday गेम. क्या ये बहुत आसान काम नहीं है, इट्स अ डिफ़िकल्ट गेम. एंड इस तरह से ही है जैसे कि वन ऑफ योर एक छुट्टी के दिन को गेम जो है वो प्लान की जाती है. यू मे थिंक फर्स्ट आई एम अ मैड एज ए हैटर. यूँ लगता है कि जैसे कोई हैट बेचने वाला है या कोई टोपियाँ सेल करने वाला है, जैसे कि आउट ऑफ द वे जाकर इस नेम को रखा जाता है. व्हेन आई टेल यू अ कैट मस्ट हैव द 3 different names. First of all, there is a name that the family use daily, such as the Peter, Augustus, Alonzo, and James, such as the Victor, Jonathan, George, or Bill Bailey, and all of them sensible everyday names. तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मोस्टली जिनके नाम हैं वो 3 किस्म के रखे जाते हैं जो बहुत फेवरेबल होते हैं, और ख़ास तौर पे ये पीटर, अगस्टस और अलोंजो या जेम्स या विक्टर इस टाइप के भी हो सकते हैं. दे ऑल आर सेंसिबल नेम्स, यानी कि ये सेंसिबल हैं, जो सूटेबल है और अच्छे लगते हैं सुनने में. देयर आर द फैंसियर नेम्स इफ़ यू थिंक दे साउंड स्वीटर, सम ऑफ द जेंटलमैन, सम ऑफ द डेम्स. तो यहाँ पर कुछ और फैंसियर थोड़े से और जोशीले और पसंद किए जाने वाले नाम जो जेंटलमैन के नेम होते हैं, आदमियों के नेम्स, जो खातून के जो लेडीज़ के नेम जो होते हैं यूरोप में ख़ास तौर पर उनको डेम्स कहा जाता है. सच एज द प्लेटो, एडमीटस, इलेक्ट्रा एंड डिमेटर. सो दीज आर द करेक्टर्स जो कि सोसाइटी में करेक्टर, ग्रीक सोसाइटी के करेक्टर्स हैं. ये भी नाम हो सकता है. बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरी नेम. बट आई टेल यू अ कैट नीड्स अ नेम दैट्स पर्टिकुलर. लेकिन इन सब के अलावा कैट को एक ऐसा नाम चाहिए जो पर्टिकुलर हो, जो ख़ास किस्म का हो, जो सिर्फ उसका ही हो, किसी और का ना हो. अ नेम दैट्स पेक्यूलर. पेक्यूलर मतलब ऑड भी हो सकता है, एक अलग से अजब किस्म का. एंड मोर डिग्निफाइड, लेकिन उसमें कुछ वक़ार भी हो, कोई इज्जत भी हो. else how can you keep up it tail perpendicular. जब उसका नाम इतना अच्छा होगा तो उसकी जो टेल है that will become perpendicular, यानी कि वो बिल्कुल राइट एंगल में सीधी जाएगी. एंड और spread out his
whiskers और cherishes pride, तो उसकी proudness में इजाफा होगा. He will be proud to have this name. और whiskers पर मूछों को भी वो चढ़ाएगा ज़रा ऊपर के, अब वो he is very happy and he is very proud. Of name of his kind I can give you a quorum. तो ये एक नाम जो है ये एक अलग कैटेगरी का नाम है. इट इज़ अ डिफरेंट कोरम, यानी ये एक ऐसा डेटा से लिया जाता है, ऐसे ग्रुप से लिया जाता है, दैट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम अदर कोरम्स. ओके, नेक्स्ट पेज इज such a monk's trap and also and Corycopat that has the Spanish name such as the Bombardiorina or else Jellylorum. So these are the names in Spanish language. So maybe वो कह रहा है कि maybe ये भी नाम हो सकते हैं. Name that never belong to the more than one cat, but above and beyond there is still one name left over. वो अब कह रहा है कि name that never belong to anyone, वो ऐसा नाम जो किसी और कैट का ना हो, but above beyond that's the still one name left over, लेकिन सिर्फ वही नाम जो इस कैट का हो. एंड दैट इज़ द नेम दैट यू नेवर विल गेस, ऐसा नाम जो आप गेस भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते थे. द नेम दैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, आदमी बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, उस पर बातचीत करता है, उसकी खोज करता है, लेकिन वो जांच नहीं पाता. बट द कैट हिमसेल्फ नोज दैट विल नेवर कॉन्फेस, तो लेकिन कैट को वो नाम जो है वो पता होता है कि वो कौन सा नाम है, लेकिन वो कन्फेस नहीं करती, उसको बारे में बोल नहीं सकती हैं, एतराफ़ नहीं करती. व्हेन यू नोटिस द कैट इज़ प्रोफाउंड मेडिटेशन, इट मीन्स जब वो प्रोफाउंड बहुत गहरी डेप्थ में जाकर सोचती है, चुप करके बैठी होती है और शी इज़ ऑब्जर्विंग, एंड द रीज़न आई टेल यू इज़ ऑलवेज द सेम, तो वो उसका हमेशा वो अपना नाम के बारे में सोच रही है. हिज माइंड इज़ एंगेज इन अ रैप कॉन्टेम्पलेशन, तो उसका जहन जो है वो बेखुदी में या एक प्लेजेंट सोच में थॉटफुली जो है उसके एक्शंस होते हैं वहाँ पर बिजी होता है. ऑफ द थॉट ऑफ हिज नेम, ये सारी सोचें उसके नाम की सोचें हैं. इज़ इन एफेबल इन एफेबल, यानी कि ये एक अपने से क्रिएट किया वो वर्ड है, यानी इसका नाम अच्छा होगा नहीं अच्छा होगा, वी डोंट नो एवरीथिंग. डीप एंड इनक्रूटेबल सिंगुलर नेम, तो ये एक बहुत डेप्थ में जाने वाला, जांच पड़ताल जिसकी जो ना हो, और एक सिंगुलर नाम होता है, दैट इज़ अ वेरी क्यूट नेम जो उसको पसंद होता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पोएम, दिस हैज़ बीन रिटन बाय T.S. Eliot. So in the next video we can do the question answers.